Hello students, I hope you all are well. I am also well. So in previous video we were studying about electric field and we had calculated electric field due to a point charge also. Okay, what was the value of that electric field? E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square, na? Where q was a point charge and r was the distance from the point charge. R was what? It was the distance from the point charge. Okay. Now today we will study electric dipole. What is a electric dipole? Electric dipole is nothing. It is just a pair of two equal and opposite charges separated by some distance. If two equal and opposite, it is compulsory condition also that charges must be equal in magnitude and opposite in nature. It means if one is positive charge, the next will be negative charge. Okay. So next topic is electric dipole. Okay. So what is electric dipole? A pair of equal and opposite charges which are separated by some distance is said to form an electric dipole. Okay, two equal and opposite charges, two, एक चार्ज यहाँ पे रख देते हैं और एक चार्ज यहाँ पे, they will form a electric dipole. Dipole means two poles. So at the two poles there are two equal and opposite charges separated by some distance. So if one charge is here, let it be minus q. The next charge will be here, let it be positive charge. Okay. So if this is the center of dipole, this charge is at a distance L from the center, this will also be at a distance L from the center. So what will be total distance between the charges? 2L. And this 2L is known as dipole length. It is known as dipole length. 2L is known as dipole length. So any arrangement of this type is known as electric dipole. And the compulsory condition is that both charges should be equal in magnitude and opposite in nature. Okay. Now the next topic is electric dipole moment. Electric dipole moment or strength also. Electric dipole strength. You can call it electric dipole strength also. So how can you calculate electric dipole strength? You can calculate electric dipole strength just by multiplying any one charge with the dipole length. Okay? It is very simple. Multiply any one charge with dipole length, you will get dipole strength. Okay? So it is product of either charge with dipole length. With dipole length. Okay. With dipole length. So it is represented by P and it is a vector quantity. So vector symbol is put here. It is equals to product of any one charge, that is Q, into dipole length 2L. So P is equals to 2QL. This is your dipole moment or dipole strength. Okay. Now the properties are, it is a vector quantity. It is a vector quantity. Okay. वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है. अगर मैं कहूँ इसका एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे? चार्ज इनटू लेंथ. चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर. सो एसआई यूनिट विल बी, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नहीं है, ध्यान देना सब लोग. इट इज कूलम मीटर. कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर. बी केयरफुल. ठीक है. तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट है कूलम मीटर. अब अगर कभी क्वेश्चन आपसे कोई कर दे कि इसका डायरेक्शन क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू
नेगेटिव, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना है, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, now next what we have to do, as we know कि if there is any point charge there will be a electric field around it। किसी भी चार्ज के आसपास जो उसका चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रेपेल करता है, फोर्स अप्लाई करता है, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं उस चार्ज का। तो अगर कहीं भी पॉइंट चार्ज है तो उसका एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब कि डाइपोल अगर कहीं रखा गया तो डाइपोल के चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें दो केसेस हैं। तो फर्स्ट वी विल डील इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल on its axis or end on position। okay, both are same thing, either end on position or axial position। so you have to remember both the names because in boards exam any name can be used in question paper, so don't get confused by the name। नाम में कुछ रखा हुआ नहीं है, काम समझो। काम ये है कि अगर हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, तो इन चार्जेस की वजह से इसके एक्सिस पे, एक्सिस कहाँ है? दिस इज द एक्सिस अप टू इन्फिनिटी एंड दिस इज द एक्सिस अप टू इन्फिनिटी। तो इस एक्सिस पे कहाँ तक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन चार्जेस की वजह से? सो फॉर दिस वी हैव टू मेक अ डाइपोल। Let us make a dipole. Negative charge is here, positive charge is here. This is center, this distance is L. Okay, now let us consider a point P on its axis. This is point P, let it be P, इसको हम P assume कर लेते हैं, at a distance x from the center। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। वी विल नॉट टेक p फ्रॉम एनीवेयर, वी विल टेक p फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से उसको हम एज्यूम करेंगे। सो डाइपोल के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया? x। अब ध्यान से देखो कि अगर सेंटर से x डिस्टेंस है तो पॉजिटिव चार्ज से कितना है? x यहाँ है, l यहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज से x माइनस l होगा। पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया? x माइनस l। और नेगेटिव चार्ज से कितना होगा? x प्लस एल। x इतना तो है ही और इतना एक्स्ट्रा है तो प्लस एल करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस कितना हो गया? p का x प्लस एल। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट p। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट p विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड ऑल्सो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इन दोनों चार्जेस की वजह से होगा। अब जहाँ पे एक से ज़्यादा चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आ जाता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? कि द रिजल्टेंट विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, सो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, यही तो होगा। ओके, कोई डाउट मत रखना, सुपरपोजिशन है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या है। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r square। r डिस्टेंस था, सो हियर डिस्टेंस इज x minus l, so it will be x minus l whole square। now electric field due to negative charge will be 1/4 pi epsilon naught minus q, because charge is negative, so minus q will come here upon distance is x plus l, so it will become x plus l whole square। okay, now the net electric field on the axis will be sum of both, so sum 1/4 pi epsilon naught q by x minus l whole square। this minus sign will come here, so it will become minus 1/4 pi epsilon naught q by x plus l whole square। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है?
बिकॉज एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक इस चार्ज की वजह से होगा, एक इस चार्ज की वजह से. सो नेट विल बी सुपरपोजिशन, विल फॉलो द सुपरपोजिशन. सो नेट विल बी सम ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ओके, सो सम हमने कर दिया दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का. अब देखते हैं क्या आता है. यहां पे देखो q by 4 pi epsilon naught, q by 4 pi epsilon naught is common. So take it out. Ex is q by 4 pi epsilon naught is common. Now what is remaining inside? 1 by x minus L whole square minus 1 by x plus L whole square. This is inside. Now solve it. Q by 4 pi epsilon naught. Here x minus L whole square and x plus L whole square will be LCM. LCM तो लेना आता है. X minus L whole square, x plus L whole square will be LCM here. So solving this denominator will cancel out. So here it will be x plus L whole square minus x minus L whole square. ठीक है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स है यार, करने की जरूरत ही नहीं है. तो इसको सॉल्व करते हैं. देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन लगेगा. a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है. सो एक्सपेंड करते हैं इसको. q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2xl, एंड दिस विल बिकम माइनस x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन, ये देखो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये क्या होता था क्लास 10 में? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर. नाउ एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो ध्यान से, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कैंसिल आउट. 2xl becomes 4xl ना, it will become 4xl. ध्यान से देखो, और 4xl को हम लिख सकते हैं 2l इंटू 2x, लिख सकते हैं कि नहीं? 2xl प्लस 2xl सम करेंगे, it will become 4xl. 4xl को हम 2l इंटू 2x लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटू 2 4xl. फिर से हो जाएगा मैथ्स. सो ये क्या हो जाएगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2l इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, q इंटू 2l p होता है कि नहीं? यहां लिखेंगे सिंस p इज इक्वल टू q इंटू 2l. सो ये q और 2l मिलके p बन जाएगा. सो इट विल बिकम 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2x इंटू p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर. इस 2x इंटू पी को थोड़ा सा अच्छा सुंदर दिखने के लिए हम लिखेंगे 2px. दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. अब इसमें भी एक केस है दैट अगर ये पॉइंट x जो है l के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाए, मीन्स अगर l जो है ये सेंटीमीटर्स में और x जो है वो मीटर्स में हो जाए, इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू l. इफ x इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू l, देन l कैन बी नेग्लेक्टेड. सो यहाँ पे एक लिखेंगे हम केस इफ x इज मच ग्रेटर देन l, देन l कैन बी नेग्लेक्टेड. l को हम छोड़ सकते हैं. यार जहां लाखों रुपए की बात हो वहाँ अठन्नी चौन्नी का क्या काम? व्हाट इज द वर्क ऑफ दैट? सो यहाँ पे x इज मच ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू l, सो l कैन बी नेग्लेक्टेड. आफ्टर नेग्लेक्टिंग l, योर इक्वेशन विल बिकम E axial इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px. l तो नेग्लेक्ट हो गया, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x पावर 4. सो एक x यहां से कैंसिल होगा, इट विल बिकम x क्यूब. सो फाइनली यू विल गेट अ इक्वेशन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x क्यूब. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. क्या मिला आपको फाइनली? यू गॉट
E axial as 1 by 4 pi epsilon naught 2p upon x cube. Okay, so this you got as electric field on the axis of a dipole. Okay, so students, that's all in this video. We will meet in next video with electric field on the equatorial line, and also we will see the difference between electric field due to a point charge and also due to a electric dipole. So this will be we will discuss in next video. Till then, take care. Good day. Goodbye.